Hello students, how are you? So children, here is your chapter 1, power sharing. And today we will start the subtopic majoritarianism in Sri Lanka. हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो श्रीलंका है, बेल्जियम है, इनमें लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। तो जो मेजॉरिटी रहती है वो चाहती है कि हमें बेनिफिट्स मिले और हम जो ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनके हिसाब से ही देश को चलाया जाए। तो हम आज इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. अब देखिए श्रीलंका जो था, श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, हमारे देश की आज़ादी के बाद। और वहाँ पर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट मेजॉरिटी में जो थी वो उन लोग की थी जो सिन्हाला बोलते थे, और इसलिए वहाँ पर जो मेजॉरिटी थी वो उन्हीं लोगों की थी। उन्होंने क्या कीजिए, सुपरमेसी जो बन गई वहाँ पर, इसलिए गवर्नमेंट क्योंकि सिन्हाला लोगों की बन गई तो सुपरमेसी भी उन्हीं की बन गई। फिर 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया और तमिल को उसे हटा दिया गया। अब इस वजह से जो क्या हुआ, जो पॉलिसीज़ थी वो सिन्हाला बोलने वालों को ज़्यादा फेवर करने लगी, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने लगी। तो चलिए इसके नोट्स देखते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। Sri-Lankan emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over the government by virtue of their majority. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. All these measures, coming one after the other, gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time. The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles, but their demand for more autonomy to province populated by the Tamils were repeatedly denied. The distrust between the two communities turned into widespread conflicts. It soon turned into civil war. The civil war caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. अब देखिए, जैसे ही सिन्हाला को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया और जो बुद्धिज़्म था, जो तमिल था, उसको उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया। मीन्स उसको उन्होंने जो है ऐसे ही लो उसमें रख दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग थे तमिल बोलने वाले, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो जो बुद्धिज़्म था उसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने लगा। तो जो तमिल बोलने वाले लोग थे धीरे धीरे उनके साथ ग्रेजुअली जो उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा, उनकी जो फीलिंग्स थी उनको अवॉइड किया जाने लगा, और इस तरह से उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगे तमिल बोलने वालों के बीच में और सिन्हाला बोलने वालों के बीच में। अब उन्होंने अपनी आवाज़ भी उठानी चाहिए, लेकिन वो आवाज़ उनकी दबा दी गई। धीरे धीरे ये जो क्रोध था धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उसने एक सिविल वार का रूप ले लिया। फिर इस सिविल वार जो थी ऑफिस ले ली। अगर देश के अंदर कुछ इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं तो वो देश की सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यही जो टेरिबल इफ़ेक्ट था यह श्रीलंका पर पड़ा। चलिए देखते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम।
Belgium recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. Here are some of the elements of the Belgium model. A. Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Many powers of the central government have been given to state government of the two of the regions of the country. Brussels has separated government in which both the communities have equal representation. Apart from the central and state government, there is a third kind of government. This is community government. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. अब देखिए धीरे धीरे इस तरह से जो सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही थी कंट्री की, तो उन्होंने फिर उपाय सोचा। तो उन्होंने क्या किया, बेल्जियम ने जो रीजनल डिफरेंसेस थे और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ थी उनको उन्होंने स्वीकार किया कि ये हमारे देश में आ गई हैं और हमें इन्हें दूर करना होगा। तो 1970 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने अरेंजमेंट शुरू किया कि किस तरह से हमारी कंट्री के बीच में जो है वो सेटलमेंट बिठाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक मॉडल बनाया और उस मॉडल के तहत उन्होंने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पर नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों ही जो मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी जो नंबर होंगे वो सेम होंगे, इक्वल होंगे, और जो बहुत सारी पावर होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की वो दोनों कंट्री के दोनों रीजन्स में बराबर बराबर होंगी। जो ब्रुसेल्स था जहाँ पर जो गवर्नमेंट ज़्यादा बोलने वाले जो मेजॉरिटी थी जहाँ पर वो अपना चलाना चाहते थे, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बोथ कम्युनिटीज़ होंगी जो वहाँ पर इक्वल होंगी और उन्हें पूरा इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने बराबरी शुरू की कि दोनों ही लैंग्वेज या जितने भी लोग हैं, जितने भी तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है उनको बराबरी का मौका दिया जाए। और इसी तरह से बेल्जियम में भी उन्होंने यही चीज़ को अपनाया कि जो डिफरेंट स्पीकिंग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनका जो डिफरेंस है उनको दूर किया जाए और उनको पावर शेयर बराबरी की दी जाए। इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया कि यदि जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं यदि वो अपनी चलाना चाहेंगे और दूसरे की फीलिंग्स और दूसरे के अधिकारों का यदि वो हनन करेंगे तो देश में यूनिटी नहीं रह पाएगी। और बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल को देखते हुए ही हमारे देश में हर एक लैंग्वेज को बराबर का अधिकार प्रदान किया गया है। अब देखिए व्हाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।